गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इस कोरोना काल ने प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम के इतिहास और भूगोल को बदल डाला है। गवर्नमेंट का भी इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को टर्म 1 और टर्म 2 एमसीक्यू के तहत लिया जाए। हम लोगों ने सब्जेक्टिव में तो बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को यदि एमसीक्यू में करते हैं तो ये हम लोग पूरे का पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो देयर आर सर्टेन सम ट्रिक्स, उस ट्रिक्स के तहत हम जाएंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सबका यहाँ डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम कंसेप्ट्स दे रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर पॉलीगन्स ऑफ क्लास 10, और इस तरह से धीरे धीरे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 हम सब टेकअप करेंगे। तो क्लास 10 हम लोगों ने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी किया है, अभी हम लोग सिमिलरिटी करेंगे, सिमिलर पॉलीगन्स। There are certain differences between congruency and similarity that I'll teach you later. First, let us see the similarity of triangles, similar of especially basically two triangles. Now let us see here. Triangle ABC and triangle DEF are the two triangles. Now two triangles are said to be similar. Under what conditions two triangles are said to be similar? Two triangles are said to be similar when they are equiangular and their corresponding sides are proportional. हम लोग ठीक से इसका मीनिंग नहीं समझते हैं कि कौन साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, corresponding sides कैसे proportional होगा. Let us see here. In triangle ABC and triangle DEF, if AB equal to DE, AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF, then we can say that triangle ABC similar to triangle DEF, and this criterion of similarity is known as SSS. Therefore, then triangle ABC similar to triangle DEF by SSS. लेकिन मेन थिंग इसमें क्या एक्सप्लेन करने का है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट AB by DE इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF. ये ऐसे भी हो सकता है कि if AB by EF equal to BC by DF equal to AC by DE, then triangle ABC similar to triangle DEF. This postulate is also known as SSS. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि AB is correspond to DE, BC correspond to EF and AC correspond to DF. But in the second time, AB correspond to EF, BC correspond to DF and AC correspond to DE. दोनों केसेस में ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों SSS ही है, लेकिन दोनों में there are some differences. What are the difference? The difference is that in one AB correspond to DE, BC correspond to EF, AC correspond to DF, and in the second time in the same figure AB correspond to EF, BC correspond to DF and AC correspond to DE. Hence triangle ABC similar to triangle DEF, and this is also known as SSS. Now let us see the second
of similarity of triangles. Let us take the same triangles ABC. We can take ABC, PQR also, but let's see are already drawn. So let's see if AB by DE equal to BC by EF and angle B equal to angle E, then triangle ABC similar to triangle DEF, and this criterion of similarity is known as SAS, side angle side. The meaning of side angle side is that here AB correspond to DE, BC correspond to EF, then the angle made between AB and BC, that is angle B, must be equal to angle made between DE and EF, that is angle E. So whenever you take AB by DE equal to BC by EF, then you are to take angle B equal to angle E. In this case, we cannot take angle C equal to angle F because B and E are included angles. Now let us see here, this one also. In this case, we can take if AB by EF equal to BC by DE. Now between the angle between AB and BC, same thing here, AB and BC is angle B, and the angle between EF and DE, EF and DE is angle E. So angle B equal to angle D, angle B equal to angle E, then triangle ABC similar to triangle DEF, and this is also known as SAS. I mean, in each time we are to take the included angles. Let us see here. In triangle ABC और ट्रायंगल लेते हैं दूसरा DEF, अगर एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाए, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाए और एंगल C इक्वल टू एंगल F हो, इस केस में भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF का, और ये क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी कहलाएगा A. नाउ वन पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल D ही लें, एंगल B इक्वल टू एंगल E ही लें, एंगल C इक्वल टू एंगल F ही लें, ये कोई जरूरी नहीं है. हाँ, इस केस में एंगल A कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल D, एंगल B कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल E, एंगल C कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल F. लेकिन इसको ऐसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल F, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D. मेरे प्यारों बच्चों, इस केस में भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा और ये क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी कहलाएगा AAA. तुमको अब ये समझना है कि हम लोग एक पढ़ चुके हैं मुहावरा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं. तो मीनिंग जानना हमें बहुत जरूरी है. हम केवल मगअप कर लिए
मगअप करने से मैथमेटिक्स नहीं होता है, मैथमेटिक्स के इनसाइड में जाना पड़ेगा और ये क्या है उसको सही सही समझना पड़ेगा। देन इन दैट केस रियली मैथमेटिक्स इज फन। नाउ अब ये और देखो पोस्टुलेटिव्स में ए क्राइटेरियन, द लास्ट वन, if angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, then तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और इस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी को बोलेंगे AA। तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर पहले तो आपने ए बताया, ये ए कैसे हुआ? हम लोग क्लास 8 क्लास 7 से जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो नेचुरली इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये एंगल अगर हो गया, सपोज एंगल ये हो गया 60, I mean 60, angle A, then D is also 60. Angle B is 70, then this will be 70. Now you find the measurement of angle C and angle F. अगर C हम निकालते हैं तो 70 plus 60 130 plus 50 180, this will be 50, और ये भी 50, तो नेचुरली हमारा थर्ड एंगल इक्वल हो गया और ए भी हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए सिमिलरिटी जहां लगाने का है, कोई जरूरी नहीं है कि ए लेंगे, ए से भी काम चला लेंगे और ट्रायंगल सिमिलर होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, लेकिन जब एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग जाते हैं तो बच्चों को बहुत सारी परेशानी होता है और वो ठीक से हमको कर नहीं पाते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए नेक्स्ट डे बताएंगे कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो कौन सा एंगल इक्वल होगा। सेकंड, इफ एंगल्स आर इक्वल देन कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब हम अपना आज का स्पीच यहीं तक रखते हैं। एंड इफ एनी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन। यदि किसी को कोई डाउट हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। धन्यवाद।